And Kunjan, when we get to the original shlok, let's also go through that English version so we can actually go through English. सर जी आप म्यूटेड है अगर आप बोल रहे थे. Okay. So we were discussing on Gatha number 20, 21, 22. And the subject matter of these Gathas were that what the thing we can see, whether these are Sachit or Achit. So these are not mine. A person who considers these things as mine, he is Agyani. And a person who thinks that these are not mine, he is Gyani. So this simple definition Acharya has given of Gyani and Agyani. Hence, to clarify more, Acharya Amritchand has just presented here example of Indhan and Agni. So it's a very simple example कि ईंधन और अग्नि अलग अलग है, both are not one. But in some Shastriya Bhasha, it means some scholarly term. Acharya Amritchand has just explained here or presented here कि ईंधन और अग्नि भूतकाल में भी अलग थे, वर्तमान में भी अलग हैं, भविष्य में भी अलग होंगे. जो व्यक्ति ऐसा मानता है वो ज्ञानी है और जो व्यक्ति इनको एक मानता है वो अज्ञानी. अग्नि का एग्जाम्पल एक है, उसके बाद उसका सिद्धांत हमने पढ़ा था कि जैसे अग्नि और ईंधन अलग अलग है, लेकिन कोई अप्रतिबुद्ध इट मीन्स अज्ञानी. तो कोई जीव ऐसा मानता है कि दीज आर माइन, ये द्रव्य मेरे हैं, ये मुझे रूप हैं, मैं इन रूप हूं, ये मेरे रूप थे, ये मेरे हैं और ये मेरे होंगे. तो यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है. ऐसे झूठे विकल्प जो करता है वो अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है. इसे यहाँ संस्कृत में असदभूत विकल्प. असदभूत इट मीन जिन विकल्पों की सत्ता नहीं है, जिन चीजों की सत्ता नहीं है, द थिंग विच इज नॉट रियल विल बी कॉल्ड असदभूत. तो ऐसे झूठे जो विकल्प करता है वो अज्ञानी है और उसकी यही पहचान है. Second thing, Acharya Amritchand also just telling us the definition and nature and thought of ज्ञानी. जो जीव ऐसा मानता है कि ये परद्रव्य मेरे हैं नहीं, मेरे थे नहीं, मेरे होंगे नहीं, मैं परद्रव्यों का नहीं, परद्रव्य मेरे नहीं, ये मुझ रूप नहीं. जो ऐसा मानता है मैं भविष्य में इनका नहीं होऊंगा, ये भविष्य में मेरे नहीं होंगे, केवल स्वद्रव्य ही मेरा है, इस तरह से जो विचार करता है, it is called ज्ञानी प्रतिबुद्ध. In simple language we can say that only one symptom Acharya Amritchand or Acharya Kundkund has presented which belongs to Jnani, and only one symptom of Ajnani. So in one line we can say that Ajnani consider all Sachit and Achit materialist thing as his own, and Jnani does not consider that in that way. It is the definition of Jnani. So one question may arise in our mind that, of course, it's very simple that these are not mine. These will not be mine. It is very clear. Then why Acharya Amritchand has just presented in just a twisting way, भूत में नहीं थे, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में नहीं होंगे.
what is the need for this kind of mind exercise? As we are aware about the nature of Gyani or scholar or Acharya, even a single word, if he has written something, it means it is have meaning and purpose. So Acharya Amratchand just wants to make sure that in past, in present, in future, it is not possible that those things, Sachitta and Achitta, those things which you can see, will not be yours. Your soul and the materialistic thing will be separated forever, whether in past, in present and in future. तो ये ट्विस्ट की जो लैंग्वेज इनने प्रयोग की है, उसको प्रयोग करके बस वो इतना बताना चाहते हैं कि ये कभी आपके नहीं हो सकते हैं। तो क्या होता है, एक बात को अलग अलग तरीके से बताने में ना बात पक्की हो जाती है। हमने देखा भी है कि कोई आप लोग जब कोई बुक पढ़ते हैं, सो देयर इज वन थॉट, और वो राइटर अलग अलग प्रकार से उस थॉट को प्रूव करता है। Many a times we feel that the content is repetitive, but that is not repetitive. From different angles, he is just trying to present, or he is just trying to prove one principle. So principle can be explained only in one page, but to give it details, it requires a lots of ways, और बहुत प्रकार से अलग अलग तरीके से उसको समझाने की आवश्यकता होती है, इसलिए आचार्य ने इसको समझाया। तो ऐसे देखें तो हमारी ये गाथाएं पूरी हो गई हैं, और लास्ट टाइम मैंने आप सबसे पूछ भी लिया था, सो यू जस्ट गिव गुड आंसर। और मैंने याद करने को भी बोला था आप लोगों को कि आप लोगों ने जो अच्छी तरह से बताया था वो याद भी करें, तो आई होप आप लोगों को याद हो गया हो। अब इसके बाद 22 नंबर का कलश आने वाला है। इसमें 23, 24, 25 नंबर की गाथाएं आने वाली हैं। मतलब अब विषय थोड़ा सा और जस्ट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। इजी है, I would not say that it will be very hard. Whenever the subject will be hard, I will just intimate you. But coming 10 or 12 gathas are very easy. Not from me, but you will realize that these are easy and motivating. तो इस तरह से ये हमारा 20, 21, 22 नंबर की गाथाएं हमने की। अब हमारा कलश चलना है 22 नंबर का, 22 नंबर का कलश हमें लेना है। सर जी, एक वन चीज, हम लास्ट टाइम जो नेगेटिव जो वे से लिया गया था उसको हम पॉजिटिव जो कह रहे थे ना, वो क्या हमें फिर से करना पड़ेगा क्या? बिकॉज हमने जब कहा कि ईंधन अग्नि का नहीं है, अग्नि ईंधन की नहीं है, और फिर हमने कहा कि अग्नि अग्नि ही है और ईंधन ईंधन ही है। सो आई डोंट नो कि उसके आगे भी है क्या, मतलब वो एक पार्ट मुझे याद नहीं है क्या। वो देखिए उसमें जो इतने सारे तो दिए ना, अपन पढ़ेंगे ग्रंथ में, तो उसमें ये लिखा है, अग्नि ईंधन की नहीं है, ईंधन अग्नि का नहीं है, अग्नि अग्नि की है, ईंधन ईंधन का है, अग्नि ईंधन की भूतकाल में नहीं थी, अग्नि ईंधन का भविष्य में नहीं होगी, अग्नि ईंधन की भविष्य वर्तमान में नहीं है, ईंधन अग्नि का नहीं था, ईंधन अग्नि का नहीं है, ईंधन अग्नि का नहीं होगा। एक ही बात को आचार्य ने अलग अलग तरीके से समझाया है, और उन्हें आखिरी में कहा है कि ये सब अलग हैं। आपकी आत्मा और पर पदार्थ एक नहीं हो सकते कभी भी। क्या होता है कि एक तो नहीं है, लेकिन हम जो हमें अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट मिथ्या है। कोई चीज एक हो ही नहीं सकती, लेकिन हम उसको एक मान रहे हैं, तो वो मिथ्या है। तो इसी वो नेगेटिव में बताया था, पॉजिटिव में भी ऐसा ही है कि ज्ञानी क्या मानता है, अग्नि अग्नि की है, ईंधन ईंधन का। इसी तरह से मेरी आत्मा आत्मा की है, और पुद्गल द्रव्य के। I think प्रवचन आचार्य सार आचार्य श्री हमारी वो मिथ्या मान्यता जो भूतकाल में के संदर्भ में भी रहती है और भविष्य के काल के संदर्भ में भी रहती है कभी कभी, तो वो छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कभी हम भूतकाल की चीजों को लेके बहुत दुखी होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था या फिर मेरा ये चला गया था,
तो या फिर कभी कभी हम भविष्य को लेके चिंता दूर हो जाते हैं कि भविष्य में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, तो ये सब छुड़वा रहे हैं ना। नहीं, यहाँ वैसा नहीं है। वो तो अज्ञानी और ज्ञानी की मान्यता एक अलग अलग तरीके से बताना चाहते हैं कि भाई ये पर पदार्थ कभी एक नहीं थे मतलब आप लोग भूतकाल में देख लीजिए। कभी हम क्या करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना किसी भी चीज का। जैसे आप लोग जॉब लेने जाते हैं तो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, वो हमारी कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड देखती है, हम भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि हाउ दिस कंपनी बिहेव्स विथ एम्प्लॉय, और हम भी चेक करते हैं, वो भी चेक करते हैं, तो वो इंटर एक्सचेंज चलता है चेकिंग का। इट मीन्स कंपनी अल्टीमेटली ये बोलती है कि भाई ये एम्प्लॉय अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा था, अच्छा है, और इन फ्यूचर टू सी द सिम्टम इट विल बी गुड फॉर आवर कंपनी। तो ऐसा ही है कि आप कुछ भी कहें, लेकिन आत्मा पर पदार्थों से अलग थी, पर पदार्थों से अलग है, और पर पदार्थों से अलग रहने वाली। ये वो बात में वजन देने के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य का उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है। वैसे तो बहुत सिंपल परिभाषा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि ये जो पर पदार्थों को कोई अपना मानता है वो अज्ञानी है, और पर पदार्थों को अपना नहीं मानता वो ज्ञानी। तो ये बहुत साधारण सिंपल डेफिनेशन होगी। तो हमें भी वैसा मानना चाहिए। और हमारे दुखों का कारण क्या है, यही तो है ना कि पर पदार्थ मेरे नहीं है और हम पर पदार्थों को अपना मान लेते हैं। तो पर पदार्थों ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे हैं। देखिए इसका एक, जैसे मोह की जो अभी आने वाला भी है, मोह का श्लोक, मोह की और एकत्व की जो चर्चा की है ना, वो प्रवचन सार अपना ग्रंथ है, एंड इट इज ऑल्सो वंडरफुल ग्रंथ रिटन बाय आचार्य कुंद कुंद। तो उनने उसके पहले ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में कहा, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में कहा है कि भाई ये पर पदार्थ तो पर पदार्थ के ही है। हमारी आत्मा यद्यपि पर पदार्थों को देखती है, लेकिन वो देखने के बाद भी वो पर पदार्थ कभी हमारी आत्मा से मिल नहीं जाते। हमारी आत्मा का स्वभाव तो आईने जैसा है ना, कि आईने में जैसे सारी चीजें झलकती हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी चीजों को जानती मात्र है, वो ग्रहण नहीं करती। इसलिए यहाँ कहा भाई आप जानो, जानने में कोई बुराई नहीं। टू नो एंड टू थिंक दैट दिस थिंग इज माइन इज डिफरेंट थिंग। हम ज्ञाता दृष्टा तो बने रह सकते हैं, लेकिन पर पदार्थों को अपना मानने में बड़ी समस्या है। क्योंकि पर पदार्थ तो अपने अपने अनुसार ही परिणमित होते हैं ना, और उनको फिर यदि अपना माना जाए तो हमें दुख होता है। तो यहाँ यही कहा कि भाई आप, दो वी आर अज्ञानी, वी नो दैट, बिकॉज वी आर रेगुलरली कंसिडरिंग दैट दीज the material what we are having, whether it is सचित और अचित, these are mine। हम बोलते हैं ये मेरी है, ये मेरी वस्तु, ये मेरी वस्तु, ये मेरी वस्तु है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, हम लोग जहाँ रहते हैं वहां से हमें अपनापन हो जाता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा इंदौर अच्छा है, आप लोग बोलते हो भाई हमारे यहाँ का अच्छा है। कोई गांव वाला बोलता है स्वरूप जी हमारे यहाँ की लाइफ अच्छी है। अभी हम लोग जनवरी में हिमालय गए थे, हिमालय के पास में गए थे, तो वहां बोले अरे यहाँ की लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत रिलैक्स में है यहाँ के लोग। तो वो एकत्व हो गया ना भाई, मैं यहाँ का हूँ, ये वस्तुएं मेरी हैं, ये शहर मेरा है, ये व्यक्ति मेरे हैं, पड़ोसी मेरे हैं, परिवार मेरा है, शरीर मेरा है। तो वो एकत्व को तोड़वाने के लिए है, और पूरा समय सार, इवन इफ यू जस्ट लुक द सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस समय सार, वी कैन जस्ट से इन वन वर्ड, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान इट मीन्स you must be realized that स्व कौन सा है और पर कौन सा है, the thing which is not yours. So accept your soul, accept the knowledge, accept your chetan, darshan, gyan. These are your own gun. So accept your soul, nothing is yours. It is very simple principle which just Acharya is going to discuss in whole samay sar containing 416 gathas. तो आपको ऐसे देखें तो मटेरियल एक ही मिलेगा, बट वो अलग अलग तरीके से समझाएंगे उसको। तो इन गाथाओं का जो पर्पस है वो यही है कि आप ऐसा मान लें कि ये वस्तुएं मेरी नहीं है। Then last time I also just explained about your domestic life.
ये वस्तुएं हमारी नहीं है. It doesn't mean that instantly you can take decision to go out of your home and you just quit your responsibilities of your office or of your family. It will take time. It will take time to give up all these things what we are having. But it is not right time. It is a time to understand the core principle of Jainism, भेद विज्ञान. ये वस्तुएं मेरी नहीं है, पहले ये निर्णय तो करें हम. अगर हमने ये निर्णय किया तो फिर हमें समझ में आएगा ना कि फिर आगे हम इन वस्तुओं को धीरे-धीरे करके छूट भी जाएंगे. तो पूरे ग्रंथ में यही वार्निंग दूंगा मैं आप लोगों को कि what भेद विज्ञान we are learning and we are taking in our Shraddhan. So that is not for instantly application in your domestic life and just in your office. लेकिन एक हमें श्रद्धांत तो रहे ना कि पर वस्तुएं मेरी नहीं है, तो हमारा दुख दूर हो सकता है. और गृहस्थ अवस्था में हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें तो फिर हमारा उनसे अपने तो टूट ही गया. All of you just must remember one principle. Secret of success and just pleasure, permanent peace always lies under the layers and layers. You cannot see the secret of success or permanent peace out of the layer or in common world. ऐसे ही संसार की जितने दर्शन हैं, they're claiming that they can provide you the permanent peace and prosperity, peace and happiness. But it is not truth. They're trying to find out the real way, but they are unable. Here in Jain philosophy, in Jainism, Acharya Kunkund clearly saying that आप जो परेशान है ना, वो परेशानी का कारण कोई बाहर की वस्तुएं नहीं है. आप क्यों ढूंढ रहे हो वहां कारण? आपकी परेशानी का कारण तो आपका मोह है. तो अब मोह के कारण परेशान है ये जीव. उसी से संबंधित हम श्लोक पढ़ रहे हैं यहाँ. Sir, one thing to add here is, मुझे ऐसा, this is what I find, कि no other religion or everybody knows this, but nobody wants to show that path and ultimate happiness. Whereas in Jainism, along with examples from the Tirthankars to the Mahapurush to everybody, right, to even the Aryans to Kevalis, they at least show you the path and tell you that this is the way you can go. Whereas in other religions, they try to show you the ultimate destination, but no one wants to show the path. And also there is not a concept of everyone can go to that path or not. Yeah, really. Oh, actually, मैं वो जो उनका सिद्धांत है ना, that is the कर्ता मात का सिद्धांत. So what usually all philosophies just think that there is a one creator who has created this world, whole universe, and he is operating each and everything. Even he is also driver of our life. What the decision, what the happening, what the incidents are happening in my life, in our life, is just operated by a one God. तो गलत तो यहीं से हो जाता ना कि भाई जहां किसी व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि कोई हमारी लाइफ ऑपरेट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं परतंत्रता का सिद्धांत. जहां परतंत्रता ने आपके दिमाग में जगह की, तो स्वतंत्रता के लिए तो जगह बची नहीं ना. जिनागम क्लियरली बोलता है, द डीड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. नो गॉड, नन अदर देन. कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इफ यू आर डूइंग गुड, okay, then you will go, you will have the celestial place in future. If you're doing wrong or bad things, you will be thrown into hell. उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं है. मतलब एक शब्द आया है, शायद हम समय सार में ही पढ़ेंगे. हम लोग अनाथ हैं. अनाथ का मतलब थोड़ा लोग बुरा समझते हैं. A person who is not having parents, है ना. मतलब एक अब्यूज माना जाता है कि अनाथ का मतलब जिसके माता पिता नहीं. तो भाई वो आत्मा को अनाथ कहा गया. तो यहाँ अनाथ आत्मा को कहा जाएगा तो कोई बुरे सेंस में नहीं कहा जाएगा. आत्मा को ये कहा जाएगा कि भाई आप किसी से उत्पन्न नहीं हुए, कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका मालिक नहीं है. आप अनाथ है, मतलब कोई स्वामी नहीं है आपका. जैसे नेमिनाथ भगवान का वो है अपना, क्या नाम से, आज मोक्ष कल्याणक है, राइट.
तो वो मोक्ष कल्याणक है, बराबर है। तो अपन इतना तो सोचे कि भाई उनने किसको अपना नाथ माना, उनने अपने आप को ही अपना नाथ माना, तो मोक्ष चले गए वो। तो ऐसे ही वी आर अनाथ, नो वन इज आर्स, कोई है ही नहीं हमारा, कोई भी नहीं है, हम अनाथ है। अनाथ इट मीन्स स्वर्ग जाने के लिए हम जवाबदार, मोक्ष जाने के लिए हम जवाबदार, नरक जाने के लिए हम जवाबदार, वॉट एवर विल बी इन आवर लाइफ, सो वी आर होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सौरभ जी, नो वन कैन जी, सी वी आर ऑल अबाउट अनेकांतवाद, राइट? सो एक दृष्टि से जैन धर्म में भी समर्पण भाव, सरेंडरिंग टू गॉड, जब आप भक्ति करते हो उस भावना से करते हो। सो ये जो है बाकी के सारे धर्म वाले वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि सरेंडर करो, और उसके काफी फायदे हैं, बट हर जगह फायदा नहीं होता है, बट उसके काफी फायदे भी है। तो क्योंकि हमारे धर्म में भी एक दृष्टि से समर्पण भाव तो बताया ही है, हर दृष्टि से नहीं है। तो आप जब दूसरे कुछ कर रहे हो, स्वाध्याय कर, अलग बात है, तो उसका फायदा तो उन्हें होता है। और हमें लगता है कि उनके पास पाथ नहीं है जाने का, बट उनको लगता है यही पाथ है, उनके लिए तो यही लगता है। सो उनको भी सेम बिलीफ लगता है कि बाकी के धर्म ने ये सिर्फ हमारे धर्म में सच्चा पाथ बताया है और इससे आपको खुशी होती है। हर जगह के सेम प्रॉब्लम है, बट सिर्फ एक चीज है कि सब एकांतवाद है और हम अनेकांतवाद हमारे पास अनेकांतवाद है। जैसे बुद्धिस्ट लोग है, वो एकदम खुश शांत होते हैं, सब कुछ अनित्य मान के चलते हैं, सिर्फ एक ही एकांतवाद लेके चले, बट फिर भी उनको उसमें भी काफी खुशी मिलती है, काफी आनंद मिलता है, काफी आराम मिलता है। 100% नहीं है, बट काफी लोग जो जैन जो इसको समझते नहीं है, वो ज्यादा पीछे रह जाते हैं एक्चुअली। कुंजन का यहाँ पे ये जो देखिए, स्टेटमेंट था ना कुंजन का, तो आई लिटिल बिट डिसएग्री विद दैट कि बाकी धर्म में पाथ नहीं है। तो आई मीन यस आई एग्री कि उनका मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, they have their own path that they've shown. We can say ki from our point of view that path is not what the ultimate goal is, और वहां करेक्ट, तक करेक्ट, ले जाए ऐसा करेक्ट। flawed, it's a flawed path, right? That's what we can say. But they have a path, they believe in firmly in that path कि जैसे वो लोग बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग है, कर्म कर्म मार्ग है, फिर ज्ञान मार्ग है। So they have a firm path, they think that that's the path. In our opinion that may be a flawed path, in nonetheless they have a path. और अभी कर्तावाद की बात करें तो हाँ, कुछ दर्शन है, few philosophies in the world they have kartavad, doership principle, like God is the doer of it. But like for example Buddhism, they don't believe in God as a doer. फिर सांख्य मत, they don't believe as a God as a doer, but they have some flawed, like Pritesh said, कि कुछ मान्यता है, some beliefs are flawed, because of which we consider that path or philosophy a bit flawed. But that you know, सब में कर्तावाद ऐसा नहीं है, but yes, they're not the complete path. हाँ, तो यहाँ तो कहने का तात्पर्य है कि भाई अगर ठीक है 33 नंबर में से 32 आ गए, किसी के 2 नंबर आए तो भी पास नहीं माने जाएंगे। तो मोक्ष जाने का जो स्थायी स्थायी सुख प्राप्त करने का, कर्मों से रहित अवस्था होने का जो मार्ग है, वो तो केवल जिन मार्ग ही बताता है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लेरिफाई किया है। वो कहते हैं कि केवली के ज्ञान में संसार की समस्त वस्तुएं झलक जाने के बाद भी उनको बंधन क्यों नहीं होता। अरिहंत अवस्था की बात की है उनने। और अगर वही कोई संसारी जीव उन वस्तुओं को जानता है अपने ज्ञान में, तो उसको बंधन होता है। तो ऐसा क्यों, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। तो उसका आंसर वहां ये दिया है कि मोह के अभाव के कारण, 4 कर्मों का अभाव हो जाने के कारण से मोह का अभाव हो गया है। तो केवल केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान में सब कुछ जानते हैं, तथापि उनको बंध नहीं होता, क्योंकि मोह का अभाव है। और हम लोग वस्तुओं को जानते हैं और उसमें हम राग करते हैं, मोह करते हैं। इसीलिए रही बात कि भाई जो अन्न दर्शन है वो क्या मानते हैं, तो ठीक है ना। देखो, जैन दर्शन तो आज तक कोई किसी के सामने कोई ढिंढोरा पीटा ही नहीं बहुत पब्लिकली कि भाई आप सब गलत हैं, हम सही हैं, वो पूरी दुनिया जैन हो जाए। कभी ऐसे आगे आए नहीं। और रीजन क्या है कि इसको तो समझाना ही बड़ा मुश्किल काम है ना भाई। अकर्तावाद का सिद्धांत आप जिससे करो, तो आप लोग तो क्या है, काफी टाइम हो गया, सो यू आर हैबिचुअल टू लिसन दिस अकर्तावाद सिद्धांत। बट इफ आई जस्ट टेल टू एनी न्यू पर्सन हु इज जैन एज वेल, वो जैन है, वो कोई न्यू भी है और जैन भी है।
तो भी पता है उसे अकर्तावाद का सिद्धांत करो तो लड़ने लगता है वो। आई जस्ट हैव सीन मैनी पर्सन, उनसे अकर्तावाद का बोलो तो वो लड़ने लगते हैं। वो सौरभ जी आप फालतू की बात करते हैं। देखो भगवान की कृपा से हमारे यहाँ सब हो रहा है। मैं शांतिनाथ भगवान का भक्त हूँ, मैं अमुक मंदिर जाता हूँ तो बोलता हूँ हाँ सही है ना, भगवान करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं आपको प्रोसेस मालूम है। फिर मैं बोल रहा हूँ ना, अब जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो वैसे वैसे मैंने अब आर्ग्यूमेंट करना सबसे बंद कर दिया। तो मैंने उनसे भी फिर स्टॉप कर दिए। मैं व्हेन आई वाज यंग उस समय में बहुत आर्ग्यूमेंट करता था, अब सब बंद कर दिए। और अब स्टडी भी और ज्यादा बढ़ा दी धीरे धीरे, तो वो कुछ समझ में आने लगा कि इसमें वैसे आने वाला भी है छंद, एक आगे आएगा श्लोक कि हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, ऐसा आएगा छंद को कि भाई हे भव्य जन क्या फालतू की बात करने में क्या लाभ है। तो ऐसे ही हमारे आचार्यों ने जो अपन बात कर रहे हैं ना प्रीतेश जी, तो न्याय के ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने सर्वमत समीक्षा लिखी है, मतलब उनको एक ख्याल में थी। तो उनने सांख्य मत, बौद्ध मत, वैशेषिक मत, इन सारे मतों के सर्वज्ञ की सिद्धि की है। मतलब सर्वज्ञ की सिद्धि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उसके अलावा भी चीजें उनने क्षणिक बात का निराकरण किया है उनने। तो वो बौद्धों से तो काफी उसमें बहुत चर्चा हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय कोई लाइव ऐसा टेलीकास्ट होता होगा जिसको डॉक्यूमेंटेशन करके हमारे आचार्य ने न्याय ग्रंथ लिखे, और उस समय बहुत सारा ऐसा माहौल चलता था जिसके कारण से वो न्याय के ग्रंथ लिखे गए। तो उनमें पूरे आर्गुमेंट दिए गए कि भाई आर्यत मत में, आर्यत मतलब जैन मत, आर्यत मत में ऐसा कहा है, और ताथागत, ताथागत को बोलते हैं बौद्ध, उनने ऐसा कहा है। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इस बात का ये मीनिंग निकलता है, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इस बात का ये मीनिंग निकलता है। तो काफी डिटेल में उन न्याय के ग्रंथों में डिस्कशन है। हमें कभी समय मिलेगा देन वी विल स्टडी दोस ग्रंथ। सर ये आप तो जो प्रीतेश ने जो इसमें बताया, प्रीतेश ने जो बताया उसके बारे में मुझे एक बुद्धि थी कि समय सार तो जैसे आपने बताया कि वी अंडरस्टैंड दिस बिलीफ्स एंड वी नीड टू कीप देम इनटू आवर बिलीफ्स, दैट वी नीड टू करेक्ट आवर बिलीफ्स, but when it comes to our daily life and even in our interaction when we are going to pray to the god, our bhasha or our language will be of samarpan and of respect, as if God you are my beneficiary, right? जैसे हम दर्शन स्तोत्र में बोलते हैं अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, कि आप ही मेरे शरण हो। तो ये भाषा तो हम बोलेंगे ही, राइट, वो तो हमारे समर्पण की भाषा है, भक्ति की भाषा है। तो साथ में हमारे बिलीफ में भी रखना है कि कोई हमारा कर्ता धर्ता वास्तव में नहीं है, निश्चय नहीं है आत्मा की दृष्टि से। बहुत बड़ी, देखिए ये चर्चा भी मुझे लगता है आचार्य कुंद इस बात को पहचान गए थे कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी चर्चा चलेगी। तो आपको पता है इसके बाद जो हमारी गाथा है ना, गाथा नंबर 26 नंबर की गाथा है। 26 नंबर की गाथा में यही वाली बात पूछेगी, पता है, मतलब क्वेश्चन है 26 नंबर, एक्चुअली में आंसर नहीं है। 26 नंबर की गाथा ही शायद 26 की है वो। तो उस गाथा में तो क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है, ये जो अपन कह रहे हैं ना कि साहब आप बोल रहे हो साहब अलग अलग हैं सब, तो फिर ये तीर्थंकर की स्तुति क्यों करते हैं हम तो उनके शरीर की स्तुति करते हैं ना। तो इसका एकदम नयात्मक भाषा में आचार्य जवाब देंगे। ये प्रतेश जी ने सही कहा कि अनेकांत हमारी एक विशेषता है, और एक्चुअल में है। मतलब हमारा एक पार्ट किसी किसी और फिलोसफी के पास पाया जा सकता है। वेदांती ने हमारा द्रव्यात्मक पार्ट ले लिया, बौद्धों ने हमारा पर्यायात्मक पार्ट ले लिया। तो एक एक पार्ट किसी के पास पाया जा सकता है, लेकिन अनेकांतवाद की अगर कोई बात करता है तो वो केवल एक जिनागम ही है। तो वो 26 नंबर की गाथा में जो जवाब देंगे आचार्य, वो अनेकांत से ही देंगे, वो नयात्मक जवाब देने वाले हैं। तो क्वेश्चन सेम यही होने वाला है। तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए कि कभी भी मैं आप लोगों से ये कहूं मतलब जिनवाणी में ऐसे पढ़ के सुनाऊं कि भगवान करता नहीं है, इट डजंट मीन आई एम जस्ट डिनाइंग यू और आई एम स्टॉपिंग यू टू गो टेम्पल एंड फॉर प्रेयर एंड उनकी पूजा के लिए मना कर रहा हूं। इसके लिए तो देखो मैं आपको बताता हूँ हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। पुण्य की जब बात होती है ना, तो दो प्रकार के पुण्य होते हैं। इस बात पे काफी लोगों से चर्चा चलती है। हमारे जो व्यापारी हैं, जैन व्यापारी हैं, और हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ जो फेस टू फेस मिलते हैं, सर उसका पुण्य को कितना सारा है, देखो कितने समय, कम समय में उसने कितना पैसा कमा लिया, कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया वो, उसको इतने का ऑफर आया, ऐसे करके। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखो भाई, दो प्रकार का पुण्य होता है, एक साधारण पुण्य और एक सातिशय पुण्य।
साधारण पुण्य की ये परिभाषा है कि जो आपके खाने की, पीने की, रहने की, भोजन की, पैसे की ये व्यवस्थाएं करे, वो साधारण पुण्य कहलाता है। और ये इसमें कोई जैनियों का कॉपीराइट नहीं है, ये किसी के पास भी हो सकता है, मांसाहारियों के पास भी हो सकता है। होते ही है ना, धन आदि की अधिकता तो उनके पास होती है। एक होता है सातिशय पुण्य। सो सातिशय पुण्य को हम बोल सकते हैं स्पेशल पुण्य, स्पेशल कैटेगरी पुण्य। वो क्या करता है पता है? जिसके पास ये पुण्य होता है ना, वही स्वाध्याय कर सकता है, वही मंदिर जा सकता है, वही तत्व चर्चा करता है, वही तत्व को अपने दिमाग में लाता है। और हमें ऐसा लगता है, मतलब since long time you are just attending this class, so someone may feel that it is not so difficult to come in this class. I just click on Zoom link and just I can enter within 30 seconds. It's very easy to join this class. नहीं है आसान, ये पता है। अगर उदय नहीं होगा तो आप उस बटन पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, आपको भाव ही नहीं आएंगे, वैसा बनाव नहीं बनेगा। तो सातिशय पुण्य जो है वो सबके पास नहीं होता है। आप भी अपने सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं उनको भी देखते होंगे, और मेरे पास तो जितने लोग हैं मैं उनको देखता हूँ। सो देयर आर मैनी पर्सन्स, दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ सामान्य पुण्य। सामान्य पुण्य इट मीन्स दे आर मोर देन वेल्दी, एंड ऐसा कुछ नहीं जो उनके पास नहीं हो सकता है। वो इंडिया में तो मकान खरीद ही सकते हैं, एक नहीं सैकड़ों, वर्ल्ड के सारे देशों में सैकड़ों मकान खरीद सकते हैं वो। तो साधारण पुण्य उनका खूब है, लेकिन विशेष पुण्य नहीं है। जब मैं उनसे बोलता हूँ स्वाध्याय की, मंदिर की, तो वो उनके जवाब बड़े अटपटे से होते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये सातिशय पुण्य सबका नहीं होता है। तो ये तो एकदम पक्की बात है कि जो पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, दान देता है, दर्शन करता है, तत्व चर्चा करता है, तो ये विशेष पुण्य की बात होती है। साधारण पुण्य तो होता ही नहीं है। तो जब भी हम ग्रंथ में ये बात डिस्कस करेंगे कि भगवान करता नहीं है और वो कुछ कर नहीं सकते, सो इट डजंट मीन दैट आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू टू गो टेंपल एंड फॉर प्रेयर। इट मीन्स दैट कि हम भगवान के पास जाते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास जाने से ही हमारे विचार अच्छे होते हैं, और वी कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम देयर। और whatever we are studying, even Samaysar, so Samaysar originally has not been written by Acharya Kunkun. It is written by सर्वज्ञ देव। तो कहा है अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा। Who is the original creator of this ग्रंथ? सर्वज्ञ देवा। तो उनकी मूल वाणी है, तो वो तो उनका उपकार कैसे भूले। और सज्जन लोगों की तो ये पहचान होती है कि उपकारी को उपकार कभी भूलते नहीं, अनुपकारी नहीं। तो इसके बाद हम एक छंद पढ़ते हैं जो संस्कृत में है। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, फिर आप लोग उसको पढ़ेंगे। ये है श्लोक नंबर 22। निकाल लिया आपने? हाँ सर। हाँ। त्यज्यतु जगदीदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल किलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। इसका हिंदी अनुवाद कुछ ऐसा है कि आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो, तादात्म पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, और स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्व भी होता नहीं। तो पहली लाइन भी हम जब पढ़ेंगे संस्कृत में पढ़ेंगे, त्यज्यतु जगदी दानिम मोह माजन्म लीनम। वो कह रहे हैं भाई त्याग दो, तुम त्याग दो। किसको त्याग दो? जो मोह के कारण से तुमने पर वस्तु को अपना मान रखा है, उसको त्याग दो। अच्छा, पर वस्तु को त्याग दें, देन इट विल जस्ट इट मे क्रिएट हैवॉक इन आवर लाइफ। अगर हमने सब चीजें त्याग दी तो त्याग दो का मतलब ये है कि आपने मान्यता में अपना बना रखा है ना। वैसे भी देखिए, पर वस्तु को त्यागने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो त्यागी हुई है, वो पर वस्तु त्यागी हुई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप, हाँ आप लोग पढ़ेंगे ये संस्कृत का छंद? हाँ सर। पढ़िए कोई। त्यज्यतु जगदिदानीं
मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत इह कथमपि नात्मानात्मानासाकमिकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध पढ़ा आपने। नेक्स्ट, whosoever wants to just read it. त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीडं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत इह कथमपि नात्मा साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। हाँ, आपने भी एकदम शुद्ध पढ़ा। ओके, नेक्स्ट, कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ता हूँ। त्यजतु जगति इदानीं मोहमाजनं लीडं रसयतु रसिकानां रोचं ज्ञानमुद्यतम् इह कथमपि नात्मानात्मानसाकमेकं किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। बढ़िया, थोड़े से सुधार की आवश्यकता है, बाकी बढ़िया पढ़ा। नेक्स्ट, सौरभ जी आप पढ़ेंगे? जी सौरभ जी। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीदं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत इह कथमपि नात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। बहुत बढ़िया, एकदम सही पढ़ा। हाँ, नेक्स्ट। सौरभ जी मैं बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीदं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत इह कथमपि नात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। तादात्म्य वृत्तिम, सही पढ़ा। और कोई? जी सौरभ जी मैं पढ़ता हूँ। त्यजतु जगदिदानीं मोहमज्जनं लीनं रसयतु रसिकानां रोचन ज्ञानमुद्यत यः कतिमपि नामानं साकमेकं किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। हाँ, थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, आप प्रैक्टिस करिए। और कोई बचा क्या? सौरभ जी मैं आदर्श बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा अभी। ओके, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम सुना दीजिए। श्योर। मिशी, वुड यू लाइक टू रीड इट? हाँ सॉरी सौरभ जी, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता तो। अच्छा, हिंदी पढ़ने ही नहीं आती क्या? थोड़ा सा आता है बट नॉट इतना अच्छा, तो या। ऐसे संस्कृत है ये। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, फिर भी सीख लेना चाहिए। मेरी एडवाइस है सब लोगों को कि भाई जैन दर्शन पढ़ने के लिए देवनागरी भाषा का आना आवश्यक है, क्योंकि प्राकृत इज इन देवनागरी लिपि, संस्कृत ऑल्सो देवनागरी एंड हिंदी इज ऑल्सो देवनागरी, तो लिपि आना चाहिए ये। ठीक है, हम कोई स्पेशलाइज नहीं बने, फिर भी एक समझने लायक में आना चाहिए। चलिए इस कार से देखते हैं हम। हाँ, यहाँ कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद, तो ये एक्चुअली पूर्व भूमिका है आने वाली गाथाओं की 23, 24, 25। तो आचार्य अमृतचंद यहाँ कह रहे हैं कि भाई हे जगत के जीवो, पहली बात तो हमारे आचार्यों का जो रहता है ना वो संबोधन जिसे बोलते हैं हम, उनको बोलने की स्टाइल तो बहुत बड़ी अच्छे से बोलते हैं वो कि हे जगत के जीवो, आपने अभी तक क्या किया? आपने बोले अनादिकाल से आज तक आपने क्या किया? मोह किया, तो कम से कम अब तो छोड़ दो। त्यजतु जगदादीनम मोह माजन्म लीनम, माजन्म आप अनादिकाल से, आजन्म मतलब अनादिकाल से आपने एक ही काम तो किया है, मोह को किया है। ये सारी परेशानी किस चीज के कारण है? सारी परेशानी का कारण तो मोह है ना।
तो यहाँ कहते हैं हे जीवो, अनादिकाल से आज तक आपने मोह किया है, उसको छोड़ दो आप। तो क्या करें? ठीक है, चलो मोह छोड़ दिया। फिर आगे कह रहे हैं रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्दत। रसयतु रसिकानाम अर्थात रसिक जनों को मतलब those who are scholar and have studied many granth and they realize that these things, these material, sachit or achit, are not mine. So it is called rasik जनों को। रसिक जनों को मतलब who has just extracted, who just extracted the juice from Jain principles, और उनको ऐसा श्रद्धान हो गया है कि यही बात सही है कि द सचित एंड अचित, these are the things are not mine। ऐसे रसिक जनों को जो रुचिकर लगे, रुचिकर इट मीन्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड, सो दे आर इंटरेस्टेड इन नॉलेज, इन ज्ञान। तो हम क्या करें? मोह तो छोड़ दें। मोह इट मीन्स अटैचमेंट एंड एवर्जन, वी कैन से अटैचमेंट एंड एवर्जन बोथ आर मोह। आप इसको छोड़ दें तो क्या करें हम? रसिक जनों ने जो काम किया है, ये देखिए बहुत एक, ये हम लोग बचपन से हमें सिखाई जाती है एक चीज कि if you just want to be a teacher, so what is the best way to become best teacher? It's very simple. Go to school, go to any school and continuously examine those teachers who are considered as best in their subject. So if you just observe 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, that the style of the teaching of the teacher, content, subject matter delivery, the study style, the teaching style, each and everything. So there are possibilities to deliver that matter in that way, which has been delivered by the best teacher. So you may be best. It's a very simple principle what we know. अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए अच्छे साइंटिस्ट के पास जाओ। वो तो लौकिक में तो आप लोग जानते ही हैं, सफल व्यक्तियों के साथ रहो तो आप सफल बनेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि आप ज्ञानियों के साथ रहें तो आपको पता चलेगा व्हाट यू हैव टू डू। आप रहे ना ज्ञानियों के साथ, रसिकों के साथ। रसिकों के साथ इट मीन्स कि जिन्होंने जनागम के रस को पी लिया है, जिन्होंने वस्तु की व्यवस्था को समझ लिया है। सो दे आर नॉट कनिंग, they are not clever, they're intelligent, they are scholar, they are studious, and they are only focusing only on knowledge. तो यहाँ भी कहा है कि भाई आप मोह छोड़ो पहले। So आपको अटैचमेंट एंड एवर्जन ये छोड़ो, उसके बाद क्या करो आप उसके बाद ज्ञान का आस्वादन करो। आई नो आस्वादन इज डिफिकल्ट वर्ड। आस्वादन इट मीन्स यू मस्ट टेस्ट ज्ञान। एक बार ज्ञान को देखो तो आप ज्ञान को टेस्ट तो करो, आप एक बार उसका स्वाद चखो तो एक बार आप ज्ञान का। क्यों चखो? क्योंकि जो ज्ञानी है ना, वो ज्ञान का आस्वादन कर रहे हैं। तो what they are doing, observe them, follow them and adopt them। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ज्ञान का आस्वादन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आत्मा संसार में किसी के साथ भी, यहाँ एक शब्द आया है आखिरी में, तादात्म वृत्तिम। So you can note down or can remember the meaning of this word। तादात्म संबंध होता है एक। तादात्म संबंध मतलब दो वस्तुओं को एक मानना, वो तादात्म्य संबंध। दो वस्तुओं का एक होना तादात्म्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो वस्तुएं एक कभी तादात्म्य नहीं हो सकती, मतलब आत्मा और अनात्मा। आत्मा अर्थात मैं और अनात्मा अर्थात सचित अचित पदार्थ, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद, ये कभी तादात्म्य संबंध धारण नहीं कर सकते, पर के साथ एक में एक नहीं हो सकते अनंत काल तक भी। till the millions and millions years, if we just stay in this universal world and we just try to get the ekatva of these things what we are just having surrounding us, so it will not be possible anyhow। Even just God
gods from heaven, just they can come to this earth and they can boon you that these things will be yours. वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था में बदलाव करने की सामर्थ्य जिनेंद्र देव जैसे वीतरागी में भी नहीं है, तो अन्य की तो बात ही क्या करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि पर के साथ एक में कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जो आत्मा का जो एकत्व है वो पर के साथ कभी नहीं हो सकता, इसलिए आप ज्ञान का आस्वादन करें। ज्ञान का आस्वादन करें से तात्पर्य ये है कि आप समझ लें ये कि ये वस्तु में आपकी नहीं है, बस ये ज्ञान का आस्वादन करें। अभी जैसे मैंने बोला था ना कि भाई समय सार पढ़ने के बाद क्या बदलाव आता है, व्हाट चेंजेस वी जस्ट फील आफ्टर स्टडीइंग समय सार। तो ऐसा कोई बाहर में कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखने वाला नहीं है। रेगुलरली यू आर जस्ट गोइंग टू योर जॉब एंड जस्ट फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होम। Anyone who is studious, who is scholar, who has realized his soul may perform and definitely will perform his regular duty. Even an ordinary person, common people will not be able to recognize whether he is a scholar or not, he is samyadasti or not. अंतर कहाँ आता है? उसकी अंदर की मान्यता में आता है। तो ज्ञान का आस्वादन करो, इट मीन्स कि आप पहचाने आप कि पर वस्तु आपकी नहीं है और आपने अनादिकाल से यही मान्यता रखी है कि पर वस्तु मेरी है। तो भाई अब तो छोड़ो उस मान्यता को। आपकी जो अनादि की मान्यता थी, आप उस मान्यता को छोड़ो, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में एह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकः किलयति काले। किलयति काले मतलब किसी भी काल में क्वापि कभी भी तादात्म वृत्तिम, इट मीन्स एक नहीं हो सकते। तो ये प्रिंसिपल हम अपने दिमाग में रखेंगे कि पर पदार्थ हम कितनी भी कोशिश करें कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो फिर हम बड़े रिलैक्स रहने वाले। एक भजन है शायद भागचंद जी ने लिखा है, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। मतलब उनकी पहली लाइन है ये, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हमें कोई भय है ही नहीं, हमने तो संसार जान लिया। हमने तो कोई भय नहीं है हमें। क्यों भय नहीं है? क्योंकि हम ये जान गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आत्मा का पर पदार्थों के साथ एकत्व का संबंध नहीं हो सकता। पर पदार्थ आत्मा के साथ एक में नहीं हो सकते। इस तरह से हमारा 22 नंबर का हमने कलश पूरा किया। अब इसी बात को आगे आचार्य कुंद 23, 24 और 25 नंबर की गाथा में थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं। आचार्य अमृतचंद ने 22 नंबर की गाथा में केवल एक हिंट दी है, उन्हें तो जस्ट सब्जेक्ट को एक स्टार्टिंग दी है। 23, 24, 25 नंबर की गाथा में यहाँ समझाएंगे आचार्य कुंद। फिर आचार्य अमृतचंद उसमें उदाहरण भी देने वाले हैं स्फटिक मणि का। इट्स अ वेरी फेमस एग्जाम्पल। स्फटिक मणि का एग्जाम्पल देने वाले हैं जो हम ऑलवेज सुनते रहते हैं, तो इन गाथाओं से आया है। तो नेक्स्ट टाइम वी विल टेक 23, 24, 25 नंबर गाथा। और मैं हर बार आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि हम अपने जीवन के वी आर जस्ट पासिंग through the golden moment and golden time of our life। हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय से निकल रहे हैं लोग, क्योंकि हम भेद विज्ञान की कला सीख रहे हैं। ये तो टेक्नोलॉजी का यूज है। देखिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज इस रूप में कर रहे हैं। तो आज मैं हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूँ, आप बैठे हैं, बट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ मोह को हटाने की जो आचार्य कुंद ने बात कही है वो हम उस पर विचार करें। और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को होमवर्क दिया था कि सोने से पहले हम जो गाथा पढ़ी ना, चिंतन करें। हमने अभी 22 नंबर का जो कलश पढ़ा, हम उसका चिंतन करें। आज सोने से पहले करें, कल भी करें। ऑलमोस्ट एक मिड पॉइंट भी आ गया है।
तो we will do a revision from 11 again. I think last time हमने 11 या 12 की थी और 22 तक आ गए, तो again do a revision there. आपने last time कहा था, मैं मिस हो गया, but I think this is the right point कि next time हम उसको revise करके आ जाए. हाँ 12 कहा था मैंने, 12 का ऐसा पेयर बनाना था। तो चलिए आप लोग ये 22 नंबर का कलर्स आप लोग रिवाइज करिए पूरे हफ्ते भर, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय जितेंद्र। सौरभ जी, जितेंद्र। जितेंद्र, एक प्रश्न है मुझे, थोड़ा हाँ। हटके, लाइक टॉपिक से अलग है, और सोचा मैंने पूछ लूं, मे बी अगर इस बार टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी ले सकते हैं, पर प्रश्न रख देता हूँ कि like we talk about like layman as a Shravak, we cannot give up defense related violence, right? So if we have to defend ourselves, our family, our religion, our society from external attacks or something like that, then we will have to defend. So as a part of it, I want to take a little bit of different scenario. Like take example of foreign occupation, like जैसे अंग्रेजों ने भारत में किया था, right? Britishers came to India and they were suppressing the society left and right, killing people, or they were financially looting them through unjust policies and stuff. So if we are under that type of oppression, is violence justified as a defense-related violence there against those people to free your nation? So that's the question. वो किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, पर्सनल है, कॉमन है, क्या है? जैसे ले लीजिए भगत सिंह की बात करते हैं या सुभाष चंद्र बोस की, because they chose the path that was different from Gandhi. Now in Indian freedom struggle is largely considered non-violent because of Gandhi's struggle became more popular, but there were many things, right? Just Mangal Pandey, Lakshmi Bai, there were many other revolts, even Jain Rani Abakka Chota, who fought to Portuguese. There were very many armed rebellions as well. So I think all of that combined and cumulatively resulted in India's independence over the centuries, right? So with that violence against the unjustified occupation and injustice and exploitation, would that be considered part of a defense-related violence? अब उसमें देखिए आरंभी उद्योगी हिंसा है ना, तो अगर आप सैनिक हैं कोई, तो वो उद्योगी हिंसा में आ जाएगा आपका। नहीं, सैनिक नहीं है, मान लो कि सैनिक नहीं है, but that person is facing the occupation, right? जैसे भगत सिंह, he was not a soldier. Subhash Chandra Bose, he was not a soldier. He later on created that army, Azad Hind Fauj, उन्होंने खड़ी की. But he was not to begin with a soldier, right? Sometimes you are when you are under centuries old suppression, you don't have an army to begin with. You have to create an army, or you have to start a spark somewhere. So Mangal Pandey, he revolted against his own, and he killed his own general, right? Because उसको गलत चीज दी गई थी. So in a way, we can say he broke the rules of the army at that time, or Fauj. देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं प्रेरित जी, मतलब मैं जो अपने चरणान युग में है वही बता रहा हूँ कि अगर आपके परिवार पे कोई अटैक करे है ना, गाली दे तो मारने की बात ही नहीं होती उसमें। अटैक करे मतलब हमारी जान पे बनाए, हमारे परिवार की जान पे बनाए, हमारी मुनियों को मारे, हमारी मंदिर तोड़ दे, बम से उड़ा दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो वहां आया कि भाई वो एक सेल्फ डिफेंस में आता है। दूसरा, अगर आप सैनिक हैं, ठीक है, तो वहां आपका साहब क्या करें, अब आप सैनिक हैं, किसान हैं, तो आपको तो काम करना पड़ेगा। उसमें भी वो बनाता है नियम अपने कि साहब मैं निहत्थे को नहीं मारूंगा, स्त्री और बच्चों को नहीं मारूंगा, ऐसे करके रहता है उसमें। अब इनको देखें जैसे भगत सिंह आदि है, तो दो तरीके थे भाई, एक तो हिंसा का, एक अहिंसा का। तो गांधी जी ने जैन धर्म से अहिंसा का सिद्धांत सीखा कि साहब देश आजाद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, अहिंसा से हो सकता है ना, हम कुछ नहीं कह के भी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो अगर सैनिक के अलावा अगर मान लो हमें रास्ता वो अडॉप्ट करना पड़ा देश आजादी का, तो करना चाहिए, देश आजादी में भाग लेना चाहिए। हमारे कई सारे जैनियों ने उस समय लिया भी है, लेकिन वो सब अहिंसा के आंदोलन में ही थे। तो अगर आपका व्यापार नहीं है, मतलब सैनिक नहीं है आप, और अगर आपके परिवार पे संकट नहीं है, तो वो संकल्प ही हिंसा में आ जाएगा फिर आपका। पर सौरभ जी, वो
क्या होता है कि वो जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल था, दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं था कि सिर्फ नॉन वायलेंट एस्पेक्ट से ही भारत को हिंसा मिली, राइट? देयर वर लॉट ऑफ इवेंट्स दैट बिल्ट अप टू दैट पॉइंट इन टाइम, जो उसके बाद गए थे, राइट? एंड ब्रिटिशर्स वेयर इन अ वे, आप देखे तो दे वर रूलिंग, सो इट वाज नॉट कि दे आर एट like formally at war with society, but they are actually killing people unjustified। जैसे अब लगान मूवी तो वैसे काल्पनिक था, बट उसमें भी दिखाते हैं, राइट? जैसे लोगों को मारते हैं, राइट? कैसे मारते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, whether they snatch things unjustifiedly, the policies that they created। So in a way, अब देखो फिर आपके धर्म पे भी आपको वो बताते हैं, राइट? कि they were forcing people to eat meat at certain places, things like that। जैसे मंगल पांडे पे हुआ था, तो मंगल पांडे was forced to use those guns that were contaminated with the meat। So अब ऐसी सिचुएशन हो, so you're not at war directly, but आपको कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या फिर you live under that type of occupation। So is अब violence देखिए, justified? अपन अगर ऐसी ऐसी सोचें, देखिए इसमें जैसे शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि साहब एक सांप है जहरीला जिसने 2-3 लोगों को काट लिया उसने, तो मेरी इच्छा है कि मैं सांप को मार देता हूँ मैं। तो अगर मैंने इसको मार दिया ना सांप को, तो ये आगे और लोगों को नहीं काटेगा ये। तो वहां क्या उत्तर दिया है आचार्य ने कि आप सांप को मारेंगे तो आपको जीव की हिंसा का पाप आपको लगने वाला है। तो बोले साहब वो सांप का क्या होगा फिर? तो बोले वो भी जीव है, उसको भी उसके परिणामों का फल मिलने वाला है। तो सांप को, यद्यपि सांप ने 4-5 लोगों को काट दिया, फिर भी हमारे यहाँ उसको मारने की प्रेरणा नहीं दी गई। भी सांप अपने परिणामों का फल भुगतेगा, अंग्रेज हैं, फिर वो अपने परिणामों का फल भुगतेंगे। तो सैनिक नहीं है, आपके घर पे संकट वो नहीं। तो मान ही रहे हैं, वो ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ठीक है, वो हमारे की सोसाइटी या हमारे से कोई रिलेशन ही नहीं होता तो ठीक है, मगर यहाँ तो डे इन डे आउट, राइट? बच्चों को भी वो मार रहे हैं। जैसे और जैसे मुगल थे, जब मुगल एक सेंचुरी पहले चले जाए, मुगल में तो क्या होता था, मुगल ऑक्यूपेशन में तो कि सैनिक आ गए, उठा के ले गए, कोई लड़की पसंद आ गई अपनी बेटी, तो उनको भी उठा के ले गए और उनको जबरदस्ती वो कर लिया, उनको कन्वर्ट करवा दिया, या फिर लेके चल शादी कर ली उनके साथ। तो ऐसा भी होता था, राइट? अब उनसे तो क्या हम वेट करें कि वो लोग, मेरी बेटी का नहीं हुआ है, किसी और की बेटी का नहीं हुआ है, नहीं नहीं नहीं, वेट वहां करूं तो तब वहां तक? तो आपको पता है उनके केस, मुगल के केस में वो उनको कोई बाइफिकेशन नहीं था। वो तो जैसे मान लो इंदौर पहुंचे तो उनको कोई जैनी ही नहीं, उनको तो पूरा इंदौर ही वही दिखता है। 2 चीज लूटते थे वो, एक स्त्री को धन मानते थे, स्त्रियों को ले जाते थे सारी, और सारे धन को ले जाते थे। तो कई सारे अपने ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो वहां तो तो जी मगर बिल्कुल। ये तो नहीं, मगर वो क्या हुआ था, जब जब ऑक्यूपेशन हो गया उसके बाद हर रोज ऐसा नहीं होता, राइट? वो ठीक है, वो कभी कभी होता है, पर उनकी पॉलिसीज ही ऐसी रहती है। तो अंग्रेजों का भी ऐसा ही था कि ऐसा नहीं है कि every single moment in time it would be like that, but yes, in general their rule and the policy, once they occupy it, they will do whatever they want। तो अंग्रेजों का भी वैसा ही हुआ ना, वो आके एक बार आपको लूट, पहले वॉर किया तब लूट के चले गए, फिर उन्होंने पॉलिसी बना दी, ट्रीटी कर लिया आपके साथ कि आप मुझे ऐसा ये कर देंगे, आपको ये चीजें माननी पड़ेगी, and then you live under that exploitation policies or what not, right? And then even the criminal justice system was under their control, so they can manipulate the laws। जैसे जनरल डायर था, उसने इतने लोगों को मार दिया, फिर भी उसको आखिरी तक कुछ कुछ नहीं हुआ था, तो उधम सिंह ने वहां पे जाके मार दिया उसको, बट उसको तो कोई सजा नहीं मिली थी, बट एंड he would have continued, right? जैसे और ब्रिटिशर्स ने किया, तो वो ब्रिटिशर्स के सामने लड़े कि नहीं लड़े? देखिए इसके लिए आप अभी वो अपनी जो 10 लक्षण है ना, 10 लक्षण की पूजन में उत्तम क्षमा का वो दिया हुआ है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है और बांध मार बहु विधि करे, ऐसे करके उसमें लाइंस हैं बढ़िया बढ़िया। तो ये तो खैर डिटेल डिस्कशन है, आप जो मगर सौरभ पॉइंट जी, रख रहे हैं ठीक है इसमें आपने। ये उत्तम क्षमा हमारे यहाँ किसको होती है? तो उत्तम क्षमा तो वो टाइप की जो उत्तम क्षमा जिसकी आपने बात की, वो तो मुनि राजों को ही होती है ना, वरना श्रावक नहीं को नहीं, तो हर किसी लेवल को पे नहीं। हर एक को हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं, भाई, हर तो ठीक हर है, एक लेवल पे हर एक को हो सकती है। बांधे मारे, राइट? तो वो तो अगर मेरे फैमिली को कोई मारने आएगा, तो अगर मैं उसको उस वक्त बोलूं कि नहीं बांधे मारे बहुविधि करे फिर भी क्षमा करे, तो मैं मेरे जो विवाह के समय में जो
हम वो लेते हैं व्रत नियम लेते हैं विवाह के समय कि हम हमारे परिवारजनों को रक्षण भी करेंगे, उसका ही मैं वायोलेशन कर रहा हूँ, श्रावक धर्म का ही पालन नहीं कर रहा मैं हूँ। तो ये बोल रहा हूँ कि वहां लिखी है तो आप अपन कह रहे हैं ठीक है, उत्कृष्ट लिखी है तो हर लेवल पे हर एक को तो फॉलो हो सकती है ना भाई, गृहस्थ के लेवल पे गृहस्थ को हो सकती है। अच्छा जहां अपन हाँ ठीक है, अपन कह रहे हैं साहब हम तो साहब हिंसा करके ये देश आजाद कराएंगे, तो केवल एक वही तरीका है क्या? अब जैसे जैसे मान लो मुस्लिमों की बात आई, उनने तो सामने सामने सबको ही लूटा, सबको, तो वहां कहेंगे कि साहब वो आपकी जो हिंसा है वो कौन सी हिंसा है? विरोधी हिंसा है वो। तो विरोधी हिंसा जब साहब हमारे नगर पे, हमारे गांव पे, क्या बोलते, हमारी समाज पे, मंदिर पे, हमारे परिवार पे संकट आएगी साहब, क्या करें? पूरे वो तो पूरे इंदौर में ही मुगल आ गए वो तो क्या करें साहब? चलो साहब या तो मरो या मारो, मतलब रक्षा करने के लिए। अब अंग्रेज जो देश में थे ना, तो अंग्रेज को आजाद कराने के तरीके भाई जैसे गांधी जी ने अपनाए कि साहब अहिंसा से देश आजाद हो सकता है, तो अहिंसा से देश आजाद हो सकता है, उनने ऐसा से प्रिंसिपल बनाया, समझा अपन लोगों से उनने, तो हुआ ना। अपन कहेंगे नहीं उनने तो 50% उनका योगदान है, 50% तो जो लोगों ने लड़ाई लड़ी ना, मारा एक दूसरे को, तो वो योगदान उनका है। तो एक अगर हम अपनी बात करें तो या तो हम सैनिक में भर्ती हो जाएं, या फिर वो अगर हमें आजादी के मूवमेंट में भाग लेना है तो शांति की वार्ता भी तो एक होती है ना, तो वो शांति की वार्ता भी हुई, तो उससे उसका जैसे भी इम्पैक्ट आया। जैसे ये भी हो सकता है ना कि अगर जैसे कोई अगर हमारे साथ वो होता है राइट, अगर आर्म्ड रेबेलियन है तो यू डिक्लेयर आर्म्ड रेबेलियन कि वी आर एट वॉर विथ यू, वी विल डिफेंड आवरसेल्फ, वी आर कंट्री राइट। अगर आपने किसी के आज अगर पाकिस्तान आके इंडिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, इफ दे ऑक्यूपाइड वी विल गो अंडर आर्म्ड स्ट्रगल कि हम वी आर एट वॉर विथ यू एंड वी विल डू व्हाटएवर टू फ्री आवर कंट्री। तो वो तो आर्म्ड स्ट्रगल ही हुई ना, वो गलत कैसे है फिर? नहीं नहीं, जैन लोग क्या है प्रिया जी, जैन लोग हिंसा नहीं करते लेकिन अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते, ऐसा नहीं है। वो बुद्धि से, अपने चातुर्य से, अपने बल से सबसे सुरक्षित रहते हैं। एक कहावत है कि जैन लड़ाई में ना गड़ा हुआ पत्थर उखाड़ता है, ये कहावत है, फेमस है यहाँ, कि गड़ा हुआ पत्थर कैसे, कि साहब एक ठाकुर से लड़ाई हुई साहब रास्ते में कहीं, तो वो तो ये जैन पता था, मैं अगर मैंने इसको पत्थर मार दिया तो ये तो राजा के पास केस जाएगा और मुझे सजा हो जाएगी, और नहीं मारा तो ये मुझे अभी पिटाई करेगा मेरी, तो क्या करूं? तो इसको डराऊं मैं, तो गड़ा हुआ मतलब आधा गड़ा हुआ पत्थर था, तो पत्थर उठा के वो ये तो है, मार दूंगा मैं तेरे को, ये भाग जाए यहाँ से। तो ऐसा है कि हम अपन तो अहिंसावादी हैं, फिर भी जो हिंसा की गृहस्थ लोगों के लिए हिंसा कहेंगे ही ना, वो आरंभी है, उद्योगी है, विरोधी है, और उद्योगी में सैनिकपना आ गया, लेकिन अगर अहिंसा के तरीके का अपनाने का उद्योगी अगर रास्ता है तो वही उद्योगी अपनाना। में तो सैनिकपना आ गया, पर जब हमारे जान पे या समाज पे ही बात बन पाए राइट, और अपने पे ही, तो विरोधी हिंसा तो कोई भी कर सकता है ना, जैसा नहीं कि सैनिक ही कर सकता है। देखिए देखिए प्रेरक जी, हिंसा का जो प्रिंसिपल है ना, कि आप कुछ कहो, हम एक आप हमें बुरे शब्द बोलेंगे और हम आपको ही तोड़ देंगे। आज पाकिस्तान देख लो, हिंसा के प्रिंसिपल पे पूरा देश बना है, बैंकरप्ट हो गया। भारत को लोग कायर कायर बोलते थे, आज से नहीं, आजादी की बात से बोलते थे कायर कायर, लेकिन आज भारत की प्रोग्रेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं समझ लो, अपन लड़ने में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, चाइना ने छीन लिया, गलत था वो, लड़ाई कर ली उन्हें, फिर भी लड़े, उसके बाद भी आगे बढ़ते रहिए, शांति वार्ता करते रहे, तो आज वर्ल्ड के परिदृश्य पे आ गए ना, बहुत बड़े लेवल पे आ गए। तो आप सीरिया देख लो, वहां ऐसा ही है, वहां तो वो बंदूक उठाते हैं। जितने देश है ना, ये हिंसा को एक रास्ता मानते हैं कि हिंसा करेंगे ना तो ही हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, अभी तो अभी सारे देश अभी डिस्ट्रॉयड हो आज चुके हैं। आज एक्चुअली अपन इंडिया की थोड़ी स्टेबिलिटी देखे ना अभी लास्ट 10 years में भी, तो देर आर टू मेन रीजंस राइट बिहाइंड द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट की। जैसे पाकिस्तान पे 2 रिटेलिएटरी अटैक्स किए थे इंडिया ने, एंड इवन विद चाइना इंडिया फॉट आई टू आई, दे डिड नॉट लेट देम कम राइट। अगर दे थॉट इन 1962 में इंडिया वाज अ केक वॉक, विल जस्ट वॉक ओवर, तो India suffered losses, and the soldiers suffered in Chinese jail for so many 3 years. अभी देखो तो Indian government is eye to eye, so their policy is not कि हम बैठे रहेंगे, we will defend and will come back to your home and we will do whatever we need to protect our नहीं home. तो वो किया ना, वो एक सैनिक का कर्तव्य था, सैनिक करेगा ना, वो तो उद्योगी हो गए ना, वो तो उद्योगी हिंसा आ गई ना, वो तो उद्योगी हिंसा तो होगी ना, वो तो उद्योगी, तो उसमें कोई सिविलियन नहीं गए, उसमें तो सैनिक ही गए ना, उसमें तो जैन सैनिक भी थे भाई, महावीर वो कौन सा जैन था, वर्धमान जैन, हाँ तो वो गया था, तो वो सैनिक था वो हाँ, वो इसलिए गया था वो। सौरभ जी मैं कैसे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि जैसे मुगल या
अंग्रेज आ गया, आपने आपके राजा को हरा दिया, तो आपका राजा गुलाम हो गया, उनका आपका राज्य भी गुलाम हो गया वो सत्ता का। नाउ यू आर अंडर देयर ऑक्यूपेशन, सो यू हैव लॉस्ट वॉर। नाउ अगर आपको अब आपको प्रोटेक्ट करना है आपके आपको, क्योंकि अब अनजस्टिफाइड पॉलिसी शुरू हो जाएगी, दे कैन डू व्हाटएवर दे आर डूइंग इट एक्चुअली, कि जैसे एक सिनेरियो थे जो ब्रिटिश राज में या फिर मुगल राज में, कि कुछ भी करके ले जाए, किसी को भी मारे, जजिया टैक्स लगाए, तीर्थ स्थानों पे भी वो कर दे, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, रोज हर रोज हो रहा है। योर किंग हैज लॉस्ट द वॉर, देयर इज नो आर्मी एनी मोर, इट्स ऑल टेकन ओवर, इट्स ऑल बीन डिस्ट्रॉयड। अब आपको आपकी सोसाइटी का रक्षण कैसे करें? क्या औरंगजेब के सामने नॉन वायलेंट स्ट्रगल लेके तो जा नहीं सकते ना, औरंगजेब के सामने, तालिबान के सामने तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल लेके जा नहीं सकते ना, गांधी जी का लेके। नहीं देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि भाई जो मुस्लिम आ गए, तो वहां भी देखो उस समय का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उस समय भी दो टीम हुआ करती थी, एक जोश वाली, एक शांति वाली। तो शांति वाली बोलती थी भाई उनने आक्रमण किया है, बहुत सोच समझ के, बहुत पावर से किया है, आप सब लोग जाएंगे, मारे जाएंगे, अभी शांति वार्ता करते हैं, फिर धीरे से समझेंगे हम क्या करना है। नहीं, मगर तो वो उसमें भी टाइम ऐसा पे नहीं है कि भाई वो टाइम पे इफ समवन assembles a group of people for armed rebellion as की जैसे अपने को अटैक करना है, अपने को सैन्य जोड़ना है, जैसे सैन्य जोड़ना है, यानी अपने को संगठन खड़ा करना है, और वी वांट टू डू आर्म्ड रिबेलियन टू ब्रेक द मैन। और हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जब ऐसा फॉरेन ऑक्यूपेशन हो भी गया था, तब लोगों ने संगठित होके, सिविलियन से भी संगठित होके उन्होंने आर्म्ड रिबेलियन से उनको भगाया, एंड देन लेटर ऑन दे असेंबल्ड देयर आर्मी अगेन, राइट? तो ऐसे भी एग्जांपल है, तो इसको हम गलत मानेंगे क्या? अब अभी तो ऐसा सीन नहीं है, बताऊं मैं आपको। और नहीं, अभी की बात नहीं कर रही, एक ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है सिर्फ समझने के लिए। देखिए, जनागम तो ना अहिंसा के ही सिद्धांत को फॉलो करने का बोलता है, और हिंसाओं में आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा, अब उसे जिस कैटेगरी में डाल ले कि साहब हमने एक समाज का ग्रुप बना लिया, तो हमारी ये पब्लिक हमारी प्राइवेट आर्मी है देश के हित के लिए, और साहब हर घर से दो दो लोग जा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज वे में हो गया, समझ लो। एक अनऑर्गेनाइज वे में आपने क्या किया, नहीं मैं तो साहब ऐसा करूंगा, और आप 2 4 10 बम लेके पहुंच गए, फोड़ दिए, किसी को ही मार दिया आपने। जब ऑर्गेनाइज वे में वो आर्मी होगी, मान लो, तो वो फिर शांति की बात भी करेगी। आर्मी किसी भी देश की हो, वो हमेशा वायलेंट कभी नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं शांति वार्ता भी करती है। वही पाकिस्तान ने 1972 में जहां देखा कि भाई हमारे सब लोग मारे जाएंगे, हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारी जान बच दो, हमें छोड़ दो, हम अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते। तो वो अगर मान लो पूरे इंदौर ने सोचा कि साहब अब ये आ ही गए हैं साहब, तो क्या करें, तो पूरे इंदौर के समाज लोगों की मीटिंग हुई, उसमें जैन समाज के लोग भी थे। तो बोले साहब आप क्या मदद करोगे, बोलो। जैन समाज से बोला तो जैनी ने बोला हम आपको पूरी रसद पहुंचाएंगे, जैसे भामास आए थे, बोले हम पूरी रसद हम पहुंचाएंगे। तो वो लड़ना मतलब इट डजंट मीन कि आपने तलवार उठाई वो ही लड़ना हुआ। भामा नहीं, साहब वो ने कहा कि सब मैं सब पूरी दूंगा, मैं आपको पूरी रसद दूंगा आपको, मैं तो वो भी लड़े, भामा साहब भी लड़े। हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि लड़ना कैसे वो अलग बात है, मगर वो लड़ना वायलेंट स्ट्रगल भी हो तो वो गलत नहीं है ना। फिर वो जैसे भामाशाह ने भी किया था, वो सिविलियन थे, फिर वो राणा प्रताप की देखिए मिनिस्टर। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन टू सिचुएशन, और वो कौन सी कैटेगरी की हिंसा में आ रही है। अगर आपकी विरोधी हिंसा है, इंटेंसली हिंसा, वो संकल्पी हिंसा है, तो संकल्पी हिंसा तो हमारे लिए प्योरली हिंसा कही गई ना। यद्यपि आरंभी उद्योगी विरोधी में भी पाप का बंधन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि वहां भी बच देखिए, जाते हैं। यही ले लीजिए, ये जो भामाशाह वाली एग्जांपल है वही ले लेते हैं कि फॉरेन ऑक्यूपेशन हो गया था, अकबर की आर्मी ने ऑलरेडी 2 बार छीन लिया था, चित्तौड़ छीन लिया था, फिर उदयपुर भी छीन लिया। अब महाराणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं बचा, और ये थे सिविलियन जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे मंदिर बनाने के लिए, और वो आके बोल रहे कि नहीं, अब मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, हमें वापस लड़ना है, वापस आर्मी खड़ी करनी है। और आर्मी में ये भी होता है ना, पहले हम ट्रीटी करने का भी ट्राई करते हैं कि लेट्स हैव अ रिस्पेक्टेबल ट्रीटी, अगर नहीं हो पा रही है तो देन वी हैव नो चॉइस बट टू फाइट। तो महाराणा प्रताप ने वही किया कि और भामाशाह भी उनके साथ ही लड़े फिर आर्मी में, तो उन्होंने फिर से सिविलियंस को भी साथ में लेके आर्मी खड़ी की, एंड वो लोग फॉर्मली वॉर पे भी नहीं गए, फिर तो वो छापामार जो गोरिल्ला टैक्टिक्स होती है उस पे आ गए थे ना, कि फॉर्मली वॉर करना पॉसिबल नहीं था साम टू सामने सामने। और पूरा मेवाड़ की स्वतंत्रता वैसे ही करवाई थी उन्होंने, अंटिल वेरी एंड गोरिल्ला टैक्टिक्स से। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, उस समय की सिचुएशन वो थी। और रही बात की भाई भामा साहब ने बोला था कि आप सेना खड़ी करो, उसमें मैं अपना धन का सपोर्ट मैं आपको दूंगा, तो वो तो एक देश का पार्ट था ना, वो तो यूं समझ लो।
तो वो विरोधी हिंसा तो में आएगा ही नहीं आएगा, वही बोल रहा हूँ मैं, काय या वो में संकल्प हिंसा में आएगा? अब वो सौरभ ऐसे जी, देखें। जी बोलिए। सौरभ जी, इसमें और एक पॉइंट भी है ना, जैसे जैन राजा थे वो भी तो सारे लड़ते थे। हाँ, जैसे कोई राजा को कोई अगर राजकुमारी या पसंद आ गई तो वो भी जाते थे ना, तो वो भी, और ऐसे भी होता था कि गलत राजा के हाथ में आ गई फिर भी वो तो होता ही था ना। और चक्रवर्ती भी सारी जो सारा जो अभी जीतने के लिए निकलते थे, तो अगर कोई राजा मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर वो भी लड़ाई तो करते ही थे ना। तो ऐसे नहीं है कि जैन कोई लड़ाई नहीं करते थे। अरे उद्योग की हिंसा आ गई नहीं, वो तो उद्योग है, राजापना क्या है, उद्योग है ना उनका, वो तो राजापने का। नहीं, पर अगर कोई आपको आई मीन कोई राजकुमारी के लिए करेंगे तो उसको कौन सा उद्योग हाँ, वो बोलेंगे? तो न्याय, यहाँ पे न्याय नीति की बात है नहीं सौरभ जी, नहीं, एक सब अरे न्याय न्याय नीति के समझ गया भाई, 4 हिंसा में से कोई ना कोई सी कैटेगरी में तो डालना पड़ेगा ना आपको। तो ये भामाशाह आपको वाली उद्योगी हिंसा जो, राजापना क्या है भाई, राजापना क्या है, राजा उद्योग है ना भाई, वो तो उद्योग का मतलब ये होता है कि भाई वो उसकी राज्य चला रहा है, मतलब उसकी भी आजीविका चल रही है, प्रजा की देखभाल भी कर रहा है। भाई एक कोई कंपनी चलाता है तो कंपनी में मान लो 10,000 सौरभ जी कर्मचारी, तो मगर क्या है, उसका ये जो उद्योग है। डीजल की बात है ना, कि अगर सिर्फ कोई लड़की पसंद आ गई किसी की और उसको उठा के लेके जाना है, उसके लिए उसने वॉर कर दिया, तो ठीक है, वो उसकी उद्योगी हिंसा में वो कर वो सकता है, विरोधी बट में आएगी, एक्चुअली में वो विरोधी में आएगी। नहीं, मगर सिर्फ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लड़की कोई उठा के ले गया और वो फाइट कर रहा है सामने, तो ठीक है, समझ गया, वो विरोधी में आएगा। परंतु ऐसे भी राजा है कि किसी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा कि मैं आपको मेरे को आपकी बेटी के साथ शादी करनी है, और अगर सामने वाले राजा ने मना कर दिया तो भी वो वॉर पे चला जाता है। ऐसे भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। हाँ तो वो संकल्प हिंसा में आ गया ना, हिंसा हाँ, भाई वो जैनी संकल्प में नहीं चला करते। जाएगा। अरे नहीं करते जैनी, किसने बोला ऐसा नहीं करते, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया अभी। गृहस्थ लोगों को आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा होती है, और वो संकल्पी भी करता है तो उस प्रकार से उसको पाप का बंध होता है। मतलब अपन अलाउ डिसअलाउ मत बोलो, अपन तो बोलो कि सब 4 प्रकार की हिंसा होती है, अब आप कौन सी करते हो देख लो उसमें। वो तो किसी ये में ज्यादा भामाशाह वाली बंधेगा, थी, ये भामाशाह वाली वो कौन सी में डालेंगे? अब भामा साहब वाली आप डाल लो इसमें, क्या नाम से, विरोधी हिंसा में डाल सकते अपन। तो आर्म्ड स्ट्रगल इज नॉट बैड, राइट? वही कह सकते हैं ना कि अगर अपने को आर्म्ड रेबेलियन भी करना है, तो अगर नहीं सिचुएशन देखिए, ऐसी है, हिंसा मात्र हिंसा ही बुरी है, अगर आप एक डेफिनेशन पूछेंगे हिंसा ही बुरी है। अब वो आप घर में हम झाड़ू लगाते हैं तो कल कहा ये भले ही है कि सब ग्रस्त अवस्था में जीवों की हिंसा होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अलाउ किया है, इसका मतलब होती है और आपको उससे पाप बनता है। तो हिंसा तो कहीं वो भी प्रयोग हो, आरंभी हो, उद्योगी हो, विरोधी कोई भी हो, उससे नहीं, तो बंधन पाप तो आपको वैसा बंधेगा, हो गई। पाप तो बंधेगा, बट श्रावक के पास वो टाइम पे डिफेंड करने के अलावा चॉइस क्या है, राइट? या तो ये है कि आप गुलाम बन के रह जाए, जैसे भामाशाह और राणा प्रताप कुड हैव चोजन कि हम गुलाम बन के रह जाएंगे, चलेगा, हम जो भी चलेगा, जैसे भी वो लोग कहेंगे वही, अपना धर्म, तो अपना की ना उन्होंने समाज। विरोधी हिंसा की ना, उसमें उसमें भाई उन्होंने विरोधी हिंसा करी ना, उसमें क्या है, उसमें विरोधी तो हिंसा करी। तो विरोधी हिंसा इज एक्सेप्टेबल फॉर श्रावक, राइट? और आर्म्ड रेबेल अगर नॉट अगर एक्सेप्टेबल, वो ये कहा है कि साहब विरोधी हिंसा श्रावकों को हो सकती है, उसे करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, किसी सिचुएशन में हो भी सकती है भाई, वो ऐसा जाने कि साहब चलो एकदम ही ऐसा संकट तो आ नहीं गया। कह सकते, क्योंकि जब वो कोई भी आदमी विरोधी हिंसा करता है, राइट, और जैसे करता है जो सिचुएशन में, जैसे अगर हम विवाह करते हैं तो विवाह के समय जो नियम लेते हैं, उसमें भी ये हम रखते हैं ना कि हमारे परिवार का हम रक्षण करेंगे। तो करेंगे यानी हम करेंगे, हमारे लिए ये हमारे कर्तव्य में आता है, हमारे सोशल ड्यूटीज में आता है कि वी हैव टू डू दिस। करनी पड़ रही है, वो अलग बात है कि करनी पड़ रही है, बट हम नहीं करेंगे, करेंगे ना तो बिल्कुल ही उसमें, करेंगे। अरे करेंगे करेंगे का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी ने ठाकुरों जैसा, वही किसी ने किसी की माँ बहन को थोड़ा आंख उठा के देखो उसकी गर्दन काट दी। भाई हमारे यहाँ तो करेंगे का मतलब जब हमारे परिवार पे प्राणों के संकट आ जाए तो हम क्या करेंगे साहब, फिर हम विरोध करेंगे, हम हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। प्राणों का वही संकट वही आ जाए, बोल रहा हूँ ना, तो वो अगर करते हैं तो उसमें ऐसा है, संकल्प हिंसा जितना तो पाप नहीं है ना, वो तो सिर्फ ठीक है, विरोधी हिंसा में जितना लगता है वो देखिए तो मैंने लगता क्या ही है बोला, श्रावक दो को, चीज तो होती कोई है, ठाकुरों तो जैसा, ठाकुरों जैसा, या तो हम ठाकुरों जैसा कर लें, उनकी तो माँ बहनों को किसी ने देखा, आज भी कई ठाकुर फैमिली ऐसी हैं गाँव में, आपने देखा इतने में तो गर्दन हाँ, काट दो और बोलते हम साहब अपनी माँ बहन की रक्षा नहीं कर सकते क्या, हाँ, इतनी भी नहीं दम नहीं, नहीं है ऐसा इनमें। नहीं कह रहे हम जो करेंगे वो पूरे न्याय नीति से करेंगे, राइट? और न्याय नीति में पूरा आता है कि पहले निगोशिएशन करो, पूरा वो भी करो, अप्रोच करो, ट्राई टू रिजॉल्व पीसफुली, बट इफ इट डजंट वर्क, समवन इज
ट्राइंग टू कि आपको ब्रेक ही कर रहे हैं आपको पूरा, कि आपको कोई चांस नहीं दे रहे, आपको कुछ भी, दे आर नॉट विलिंग टू लिसन एनीथिंग अदर देन वायलेंस। सो देखिए व्हाट इस एल्स टू कंडीशन डू में देन? इतना होता ही नहीं है। अगर पुराने जमाने में कोई किसी की माँ बहन को उठा ले जाता था तो इतना कोई टाइम थोड़ी होता था कि निगोशिएशन करे, वो भी तलवार लेके दौड़ पड़ता था, इतना टाइम नहीं होता था, या तो मर नहीं, मर तब जाता तो था करना या ही मार पड़े, जाता था। तब तो करना ही पड़े, राइट? क्योंकि अगर उठा के ले ही गया है तो क्या करोगे फिर? आप वेट तो नहीं कर सकते कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तब तो आपको जो करना है वो करना ही पड़ेगा ना। अगर आज भी अगर हाँ मेरी बेटी बराबर को है। कोई क्रिमिनल कुछ पकड़ने ले जाने आता है तो मैं तो जो भी बन सकता है वो करूंगा, उसको मारना पड़ेगा तो मारूंगा भी, राइट? ऐसा ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ मैं क्या तो वेट करूं कि उसके साथ गलत हो जाए? वो भाई अगर किलिंग वाली हिंसा है, हमें शारीरिक रूप से क्षति वाली हिंसा है भाई। देखिए वचनों की अगर हिंसा है तो वचनों की हिंसा पे हम लोग तो शारीरिक हिंसा नहीं कर सकते ना भाई। नहीं वचनों कर की सकते, वो हिंसा तो का ठीक जवाब है, हम लोग वचनों से दे लेते हैं। ठीक है, अब वचनों से कोई देंगे वो शारीरिक तो। हिंसा हमसे कर रहा है तो हम शारीरिक हिंसा से देंगे। जनरली क्या होता है आपको पता है, हम जैनियों में ये विशेषता है, हम किसी की वचन का हिंसा का जवाब हम शारीरिक हिंसा से देते ही नहीं है। लेकिन पता है अन्य वो समाज सही में है। ऐसा नहीं है, पता है। अन्य समाज में वचन की हिंसा से शारीरिक हिंसा के बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में, केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये सब वचन की हिंसा से वो शारीरिक हिंसा आ गई और बहुत फ्रीक्वेंट आती है। एटलीस्ट हमारे यहाँ ये संयम है कि सब वचन की हिंसा से हम लोग शारीरिक हिंसा नहीं करते। जब तक कि भाई हमारे शरीर पे बिल्कुल अब तो प्राणों पे संकट ही आ गया, तब क्या उपाय बचा, मरता क्या ना करता। तो वो वाला मैटर। सही है, सही है। ठीक है, ठीक है। नहीं, अच्छा हुआ। चलिए बढ़िया। काफी दिन से मिस कर रहे थे, आज हम प्रेरित जी को आज हमने पूरा रिकवर कर लिया मिसिंग। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम। सर जी ये ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार। जय जिनेन्द्र सभी को।